Hello students, I'm Rajni Mamgain, biology master teacher at Vedantu, and we are discussing chapter Hereditary Evolution for KVPY SE. So this chapter is one of the amazing chapter because it involves two topics, two most important topic of biology. One is heredity, other is evolution. So heredity is the part of genetics and we will see evolution separately. So let's start genetics part. We already know when we talk about genetics, it is the study of gene, study of chromosome, or we can say it is the study of inheritance. Inheritance means transfer of similarities because we see that we are similar to our parents plus we are having certain variation also. है ना, तो हमारे वेरिएशंस भी होते हैं और सिमिलैरिटीज भी ट्रांसफर होती है. So we will be seeing that how inheritance means transfer, heredity means similarity, variation means differences between parents and offspring. कैसे ट्रांसफर होता है. So genetics is the study of heredity and variation or study of genes or chromosome. Hereditary, as I have told you, means similarity between parents and offspring is known as heredity. Variation means differences between parents and offspring. And inheritance means transmission of the character from parents to offspring. Either it's similarities or the variation, how they transmit, we will be seeing that we call inheritance. So let's start heredity or genetics part in a very detailed way. So let's go ahead. We know already that variation will be seen in the sexual reproducing organism because there two parents are involved. So variation is clearly seen in those organisms who are involved in sexual reproduction because we know it involves two parents. And mixture of two parents means sperms and the egg from the mother and father combine to form zygote. And zygote basically convert into the human. So that means we are having the mixture of the gene from parent, from the both the parents, from mother, half from the father, or both of them are equally responsible for our character, and that's why we are having some character different than our parents, some combination of the character are different than our parents, and we are having some similarities from the parents, right? So because two parents are involved and sexual reproducing organism showing certain variation. Whereas asexually reproducing organism like bacteria, amoeba, they reproduce by growing itself. Only one parent is involved there. One parent divide into two cells, and obviously those two cells known as offspring. So there is no chance of the variation in this particular asexual reproducing organism. But they have certain variations in them. Why? Because of mutation. Asexual reproducing organism actually have mutation means sudden change, or you can say there is change in the DNA or change in the genetic material. So sudden change or abnormalities in genetic material in DNA cause the variation. सिर्फ इसी वजह से इनके अंदर वेरिएशन आ सकती है, वरना एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर उनके वेरिएशन आने के चांसेस नहीं होते, राइट? बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड माइटोसिस से वो ग्रो करते जाते हैं, है ना? तो दे आर कीप ऑन ग्रोइंग फ्रॉम द वन पेरेंट, फिर वो दो डॉटर सेल में, एंड दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. अब वेरिएशन हमें चाहिए क्यों? व्हाई द वेरिएशन इज सो इंपॉर्टेंट? Because we know that all the individual of the human are having so much variation, so much differences. क्योंकि जितना environment change हो रहा है, we have to survive there. So that means variation is important for adaptation. हमारे अंदर changes होंगे तभी हम adapt कर पाएंगे changing environment के साथ. And it is very important for our survival. And as the variation keep on accumulating in organism, it will leads to evolution. So variation का purpose है adaptation, survival, evolution. Evolution means new species will be formed. We already know this example that पहले जमीन पर घास होती थी,
तो जिराफ की नेक छोटी थी एंड दे आर ईटिंग ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड. But as the environment changes, grass disappear and now they have to eat from the long trees. So they started stretching their neck and obviously their neck become longer. So that is a kind of adaptation, that is kind of evolution, that is kind of change with changing environment seen in the species for their survival, right? तो yes, इसलिए हमें variations की जरूरत होती है. सो वेरिएशंस की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी बनती है. वेरिएशंस देखने को मिलती है हमें एनवायरमेंट में. वी सी डाइवर्सिफिकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन. वेरिएशन नहीं होता तो वी could not see or we would have never seen this diversification in the environment. Biodiversity नहीं बनती. अब now we are starting genetics. So before starting genetics, it's very important to know what is the character and what is the trait. So both of these terms are related to each other. कैसे? We are going to see it. Suppose we are talking about the character. So character किसी भी एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर हम बोल रहे हैं, उसकी हाइट, हर एक पॉपुलेशन के में लोगों की हाइट होती है. अब उस पॉपुलेशन में अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो दैट इज ट्रेट. वो टॉल भी हो सकता है, वो डॉर्फ शॉर्ट भी हो सकता है. So that is the trait, right? So yes, if we see the difference between character and trait, so character means होता है heritable feature, means that will pass down. So that is called character. Traits are the alternative form of the character. जैसे height की बात करें, short and tall. Hair type, straight or curly, right? So these are the trait. Eye color, blue, black, gray. So eye color is the character and blue, black, gray, these are traits. So important in the identification of the group of organism, इनका eye color है. और क्या eye color है? तो एक individuals के क्या eye color है? That is the feature of the individual is known as trait. So eye color is the example of character, blue, black, and obviously so on. These colors are traits. So this is so important in this chapter. ये terms बहुत important है. You should be very crystal clear about these terms. तभी 11th का 12th में भी बहुत बार ऐसी terms आएंगी. And don't ever be confused. So character, eye color, as I have told you, traits उसके भी features होते हैं, उसके alternative forms होते हैं. You can see it here. Same tongue. So there are, tongue is present in a population. उसमें से भी कुछ रोल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं रोल कर पा रहे हैं. This is trait. Same. Before going ahead, before starting genetics, हमारी 11th, 12th, 10th जहां भी आती है, we should be aware about these important terms. So what are those important terminologies here? So one is allele. So what is allele? Allele is the alternative form of a gene. Now you will say, ma'am, what is gene? We are not aware about it. So we already know our body is made up of trillions of the cells. And each cell have nucleus. Each nucleus have its genetic material that is known as DNA. And DNA obviously present in the thread form. So this thread actually have a particular, suppose this is the part of DNA, which is coding for some functional character, which is responsible for the particular character to express. That is known as gene. So gene is nothing but the functional segment of DNA or genes in terms of Mendel. अभी हम Mendel भी पढ़ेंगे. Mendel is father of genetics, right? So in terms of Mendel को पढ़ने से पहले we are just understanding this term. So Mendel used to say कि parents से offspring में characters transmit होते हैं कुछ factors के through, क्योंकि उसको gene का concept नहीं पता था. So that factor or that gene is same, that is unit of inheritance. Inheritance means जिससे कि character pass होंगे, transfer of character known as inheritance. This is the unit of heredity, unit of inheritance. And we know that gene is nothing but the functional segment of DNA. ये functional मतलब जो function करता है या किसी character के लिए code करता है. Suppose DNA का ये part किसी function, किसी
कैरेक्टर के लिए कोड करता है, ये वाला पार्ट किसी आई कलर के लिए कोड करता है, ये हेयर टाइप के लिए कोड करता है। तो सारे, इसका मतलब ये है कि सारे पार्ट डीएनए थ्रेड के किस कैरेक्टर के लिए कोड नहीं करते, बट जो पार्ट करते हैं दैट इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन. So gene is nothing but the part of DNA which carry the hereditary information or means that has to be passed down from parent to offspring. जो भी कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होने उसको जीन बोलते हैं. और हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो 25,000 जीन्स हैं which code for different characters, right? So this is actually gene. और अलील क्या है? तो बच्चा हमारे अंदर जो जीन होते हैं ना दैट इज प्रेजेंट इन पेयर. जीन और इन टर्म्स ऑफ मेंडल उसको फैक्टर बोलता था, ये पेयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं. और ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो इसको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, राइट? तो जैसे अगर हम बात करें टॉल की, तो टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. ड्वार्फ अगर कोई है तो उसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे. वाई? दैट वी विल बी सी, राइट? तो यहाँ पर जो है जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. तो या तो हम टॉल की बात करें या डॉर्फ की, एंड दोनों हाइट है. सो हाइट इज अ जीन, और उस जीन के लिए दो अलील हो सकते हैं. तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, एनी अलील, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील, दैट वी विल बी सी. Now out of the मतलब these allele are, some of the alleles are dominant, some are recessive allele. So let's see what is the dominant and what is the recessive in a very detailed way. But before this, let me tell you homozygous and heterozygous allele. So क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जीन होगा वो जीन किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है? पेयर्ड कंडीशन में. तो सपोज करो यहां पर टॉल की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर अगर हम जीन की बात करेंगे तो जीन पेयर्ड होता है, पेयर्ड अलील से बनता है, पेयर्ड अलील से बनता है. अब वो पेयर्ड अलील्स में या तो दो कैपिटल टी आ सकते हैं, तो इट विल कोड फॉर टॉल, ये टॉल के लिए कोड करेगा. या फिर इस तरीके से एक उसके साथ कैपिटल, एक स्मॉल, और मैंने कहा स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ. तो दोनों अलील में से एक होगा डोमिनेंट, पावरफुल, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर कंडीशन में. ये कहेगा आई एम सो पावरफुल, एंड उसको अपने आप को बहुत शो ऑफ करेगा. लेकिन ये होता है बेटा रेसेसिव, एक होता है इसमें से रेसेसिव. सो डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस इन द कैपिटल लेटर, और रेसेसिव बेचारा वैसे रेसेसिव है तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट होमोजाइगस अलील, homozygous condition, homo means same, right? Or zygous means obviously we are talking about the same allele in a gene. So अगर same allele है तो this is known as homozygous allele. This is homozygous allele क्योंकि दोनों allele same है, capital T है. And this person will be tall obviously. अगर यहाँ पर एक tall का है, एक dwarf का है, means two different allele is there. So मतलब this condition will be heterozygous. और सिंपल सी बात है यार, heterozygous allele means obviously different alleles are there, right? So this person will be heterozygous in this condition but will show tallness, but लंबा ही होगा. क्यों लंबा होगा, क्यों टॉल होगा? सिंपल सी बात है, इसलिए टॉल होगा क्योंकि हमेशा डोमिनेंट वाला अलील अगर रेसेसिव अलील के साथ है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा. सो होमोजाइगस या फिर जो डोमिनेंट अलील होता है वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, होमोजाइगस में हो, दोनों सेम अलील हो, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, एक उसके साथ डोमिनेंट हो रेसेसिव, वो खुद को तब भी एक्सप्रेस करेगा, राइट? तो दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज हेट्रोजाइगस. वन इज डोमिनेंट, अनदर वन इज रेसेसिव. और रेसेसिव अलील खुद को कब एक्सप्रेस करेगा? जब दोनों रेसेसिव अलील, दोनों ड्वार्फ वाले अलील साथ आएंगे तब जाकर ये ड्वार्फ बनेगा. तो मतलब ड्वार्फ अलील जब साथ में आ जाएंगे, यानी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही खुद को ये एक्सप्रेस कर सकता है. नॉर्मल कंडीशन में ये खुद को एक्सप्रेस, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में ड्वार्फ वाला खुद को या रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ये तभी ड्वार्फ दिखेगा जब दोनों ड्वार्फ अलील, दोनों रेसेसिव अलील साथ में होंगे. So this is the concept of dominant allele. The character which is expressed, it is indicated with capital letter.
so it will be allele, right? Or obviously recessive allele will be that which will not be expressed with the dominant allele. ये तभी express होगा जब यहाँ पर ये homozygous condition में होगा. It is represented with small letter. Dominant represented by capital letter. Right? So this is the homozygous, this is the heterozygous condition. So now you can see ये heterozygous condition है. Right? यहाँ पर ये homozygous condition है. फिनोटाइप क्या होता है बच्चा? सो फिनोटाइप मींस दिखने में कैसा है. तो मैंने कहा अगर ये वाली कंडीशन है तब भी ये टॉल होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी टॉल होगा. सो विजिबल कैरेक्टर क्या है? दैट इज द फिनोटाइप, एंड जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर. मींस जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, जीन मेकअप कैसा है. अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस टॉल है, दिखने में दोनों टॉल हैं बट इनके जीन्स कैसे हैं, इनमें अलील्स कैसे हैं, इनका जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है, व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप. सो वन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, अनदर वन इज इन द होमोजाइगस कंडीशन, पर दिखने में दोनों टॉल है. सो दिस इज एक्चुअली द जेनेटिक मेकअप कि इनके अंदर जीन कैसा है, राइट. सो बच्चा दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट यू हैव टू रिमेंबर. So obviously you can see dominant trait is expressed both in the heterozygous, homozygous condition, but recessive trait only expressed in the homozygous condition, which I have already told you. और heterozygous condition में मतलब एक dominant एक recessive होगा, तब भी dominant वाला ही खुद को express करेगा, recessive वाला खुद को नहीं express कर पाता, right? अब यहाँ पर इससे पहले मैं आगे एक और टॉपिक स्टार्ट करूं मेंडल का, यहां पर एक टर्म और आती है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम. अब तुम कहोगे कि मैम व्हाई वी आर लाइक हैविंग द पेयर्ड अलील और पेयर्ड जीन. पेयर्ड जीन क्यों होते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज दिस टर्म ऑल अबाउट? होमो मीन्स सेम, logos means location of gene, location of gene on chromosome, as simple as that. And you know what is chromosome? DNA at the time of cell division condensed into a very condensed, मतलब पूरा एकदम सिकुड़ जाता है और एकदम छोटा वो थ्रेड जो लंबा धागा होता है वो छोटे से स्ट्रक्चर में सिकुड़ गया, दैट इज द क्रोमोसोम, हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए नोन एज क्रोमोसोम. सो व्हाट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो बच्चा सी, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? वी नो इन अवर नॉर्मल सेल वी आर हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉयड मतलब 23 पेयर्स क्रोमोसोम, और 23 पेयर्स को हम ले सकते हैं 46 क्रोमोसोम ऑल्सो. तो ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेल में, डिप्लॉयड सेल में, राइट. 23 पेयर्स होते हैं. अब कभी सोचा है कि पेयर्स किस बेसिस पर बनाते हैं? हम पेयर्स क्यों बोल रहे हैं? 23 पेयर्स क्यों बनाए हमने? पेयर्स क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 23 क्रोमोसोम वी रिसीव फ्रॉम मदर साइड, फादर साइड, 23 कम फ्रॉम मदर साइड. ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जिसमें 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स क्रोमोसोम आते हैं. तो मैं 23 पेयर्स किस बेसिस पर बना रही हूं, आई विल बी टेलिंग यू दिस, राइट. सो नाउ सी, सपोज किस बेसिस पर बनाए. सपोज आई एम गिविंग दिस क्रोमोसोम नेम, क्रोमोसोम नंबर 1 मैं इसको बोलूं. This is, I'm calling it chromosome number 1 that has come from father. And this is the chromosome number 1. मैंने इसको भी chromosome number 1 नाम दिया, right? And this has come from father. इसको मैंने chromosome number 1 नाम दिया, ये father से. अब why I will call them homologous? Because इस आर्म पर, इस क्रोमोसोम में, इस आर्म पर सपोज करो there is the gene of eye color. हो सकता है ब्लू, ब्लैक, कुछ भी हो, आई कलर का जीन है. दिस इज द जीन फॉर आई कलर, राइट. एंड इस क्रोमोसोम में सेम इसी लोकेशन पर भी आई कलर का ही जीन है. हो सकता है ब्लू हो सकता है ब्लैक हो सकता है ब्राउन हो, एनी कलर, बट यस कैरेक्टर सेम, जीन सेम है. हो सकता है इसके पास ब्लू कलर की आई के लिए हो
हो सकता है इसके पास ब्लैक कलर की आई कलर, लेकिन है आई कलर का। सेम सपोज यहां पर इस लोकेशन पर हाइट की जीन है, हो सकता है टॉल हाइट के लिए हो उसके पास। टॉल मीन्स कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि ये डोमिनेंट है। और सपोज यहाँ पर हाइट के लिए ही है और डॉर्फ है, स्मॉल डॉर्फ है, एंड वी नो डॉर्फ इज रेसेसिव, तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम यहाँ पर सपोज करो हेयर कलर के लिए है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट कैपिटल ए, और हियर वी आर हैविंग द यहाँ पर भी सपोज करो हेयर कलर ब्लैक ब्लैक है दोनों में, so AA I'm representing with it with A. So what I have concluded, what is the homologous chromosome? They are having same shape, same size, and gene location is very same. Gene type of gene is also very same. So उसके बेसिस पर मैंने कहा ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया, ये मदर से आया। सेम वे मैंने सेकंड का पेयर बनाया, वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर, ऑन द बेसिस ऑफ द जीन प्रेजेंट इन इट। कौन सा जीन प्रेजेंट है, सेम सेम जीन होगा तो मैंने उनको पेयर बना दिया, सेम 3 और ये चलता गया 23 पेयर्स तक। तो नाउ यू कैन सी, देखो यहां पर ये 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम मदर अदर फ्रॉम फादर, 1 फ्रॉम मदर अदर फ्रॉम फादर, सेम 3rd पेयर, और ऐसे टोटल 23 पेयर्स हमारे पास होते हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली दी कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइप मीन्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम की टाइप, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर 23 पेयर्स क्रोमोसोम, राइट। एंड मैंने कहा कि यहाँ पर ये होमोलोगस होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सेम लोकेशन ऑफ जीन ऑन द पेयर्ड क्रोमोसोम। सो इसलिए हमारा जो जीन होता है वो पेयर्ड में प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए इसके 2 अलील होते हैं, है ना। 1 पेयर्ड जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 अलील, तो वो हो सकता है होमोजाइगस। और जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस अलील, right? Black represented by capital B, blue represented by small b. So suppose this is the other allele. So means one gene having 2 allele because we are having 2 homologous chromosome. One from mother, other from father, total 23 pairs. था ना मजेदार? So, but I'm sure that you have got everything, right? So this is all about the terminology that will be used in genetics. अब हम father of genetics मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी जो लाइफ स्पैन था वो दिया हुआ है यहाँ पे, कब से कब तक ये जिए हैं। तो ग्रिगोर जोहान मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु एक्चुअली डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हैपन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड ही इज कंसिडर फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज इन्होंने 2 पी प्लांट लिए, 2 अलग अलग पी प्लांट, सपोज एक टॉल पी प्लांट लिया, एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया, 2 अलग प्लांट लिए और दोनों को क्रॉस करवा दिया। एक का पॉलिन ग्रेन यूज किया, एक का मेल फीमेल पार्ट स्टिग्मा ओवरी वगैरह यूज करी, दोनों को फर्टिलाइज किया और देखा कि इनका ऑफस्प्रिंग कैसा आएगा, इनमें कैसे ट्रांसमिशन, कौन सा कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने और देखा, ऑब्जर्व किया कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो हमने बहुत मजेदार वे में देखना है ना, मजेदार चैप्टर। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय ग्रिगोर मेंडल। He has done experiment on Pisum sativum, which is the scientific name of pea plant. 7 ईयर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फ्रॉम 1856 टू 1863, और इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, तो ये टर्म्स मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, राइट। ही हैज यूज स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक लॉजिक इन्होंने यूज किया बायोलॉजी में, विच वॉज रियली अमेजिंग। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बायो में मैथ्स किसी ने यूज करी, राइट। एंड मेनी पी वैराइटीज वर अवेलेबल, बहुत सारी पी वैराइटीज अवेलेबल थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनमें, विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल थे, कुछ डॉल, कुछ ड्वार्फ, कुछ का येलो कलर, कुछ ग्रीन कलर, है ना। सो some are having green pot, some having yellow pot, तो मतलब easily contrasting trait हमें उसमें देखने को मिल रहे थे, जिससे हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते, मतलब मेंडल अच्छे से उनको ऑब्जर्व कर सकते। एंड पी आर स्मॉल प्लांट्स एंड इजी टू ग्रो।
स्मॉल प्लांट है, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं. पी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल. सो यू नो व्हाट इज द बाइसेक्सुअल. सो बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर इनमें था, मीन्स मेल फीमेल present, both present in the both male female reproductive part present in one flower. Reproductive part present in one flower. So means अगर एक ही फ्लावर में pollen grain भी है और the stigma, style, ovary, female part भी है, तो they can easily drop the pollen grain in the same flower. self pollination हो जाएगी. self मतलब खुद को ही pollen grain देकर fertilize कर देगा. सो मीन्स पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करना भी बहुत आसान है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना भी आसान है, और इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं आर्टिफिशियली. कैसे, वो अभी हम देखेंगे. राइट. एंड दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. एक सीजन में पूरी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है. सो वी विल बी गेटिंग रिजल्ट वेरी फास्ट. एंड मेनी जनरेशन कैन बी स्टडीड इन स्मॉल ड्यूरेशन. तो हमें रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेंगे एंड वी कैन डू एक्सपेरिमेंट वेरी नाइसली. वी कैन सी द कंक्लूजन वेरी फास्ट. एंड दैट वाज द रीजन this Mendel has chosen this P as a genetic P as a study model. right. तो यहाँ पर मैंने कहा कि कैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट है. तो बाइसेक्सुअल प्लांट में हम क्या करते हैं, मेच्योर होने से पहले हमने मेल पार्ट हटा दिया. राइट. मेल पार्ट मीन्स हमने एंथर को रिमूव कर दिया. दैट इज नोन एज इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन मीन्स एंथर हटा दिया बिफोर मैचुरेशन. अब नाउ ओनली द फीमेल पार्ट इज लेफ्ट हियर. सो ओनली द फीमेल पार्ट इज लेफ्ट. अब सपोज करो ये वायलेट की एक प्लांट है जिसमें वायलेट कलर के फ्लावर आते हैं, और ये दूसरा पी प्लांट है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन पॉलिन ग्रेन फ्रॉम हियर. इससे पॉलिन ग्रेन लिया और उस पॉलिन ग्रेन को इसमें डाल दिया. बिकॉज अब हम देखेंगे कि इनका जो हाइब्रिड बनेगा, इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें वायलेट फ्लावर आएंगे या व्हाइट. तो मतलब वो देखना चाहता था कि क्या आगे ट्रांसमिट होगा, है ना. अमेजिंग एक्सपेरिमेंट. तो व्हाट ही हैज डन, पहले उसने एंथर को काट दिया जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वो खुद को फर्टिलाइज नहीं करेगा. बिकॉज हम चाहते हैं कि वायलेट वाले को हम व्हाइट वाले से फर्टिलाइज कराएं. तो उसके बाद इसके एंथर उसने हटा दिए. राइट. जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड कर सके. फिर पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के लिए और उसको फीमेल प्लांट में डाल दिया. राइट. तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. देख रहे हो किस तरीके से आर्टिफिशियली इजिली क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं. और फिर फाइनली इसको जो ऑफस्प्रिंग मिले वो हाइब्रिड मिलेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स मिलेंगे. और तब ये अपना रिजल्ट का कंक्लूजन देगा जो हमने पढ़ना है बहुत डिटेल में. राइट. सो नाउ लेट्स गो अहेड. These are the 7 character of Pisum sativum that he chose. Right. So बच्चा flower color, seed shape, seed color, pod shape, plant height, flower position, all these are characters. And इस character के contrasting traits हैं. So some of them are dominant. You know what is dominant trait? जो खुद को express करेंगे in homozygous as well as heterozygous condition में. And obviously some are recessive, which will remain recessive and will express itself only in the homozygous condition. So purple color is dominant, represented by capital letter, और obviously ये इसका counterpart small letter से. Round is the dominant, wrinkled is the recessive. Yellow color seed is dominant, and आपको ये याद रखना है. And obviously small y representing green color seed, which is recessive. Green color pod मतलब cover, is the dominant, and yellow color pod is the recessive. Small y, small shape. Inflated मतलब full, फूला हुआ. Right? It is represented pod shape, और small f represent constricted पिचका हुआ. Tall plant is the dominant, small t represent short. Axial plant होता है axis पर flowers आए. ये जैसे stem है and stem के axis पर flowers आए. This is the dominant. And terminal मतलब tip पर आए flowers, not axis पे. So that is basically the recessive. So means these traits, dominant trait, recessive trait, and these are 7 characters having 7 pair contrasting traits that we can see here, which you have to remember obviously. Right? तो बच्चा, this is all about the
terminologies all about the Mendel and basic of genetics. So we know very well that obviously this Mendel has done experiment on pea plant and he has taken one gene. So one gene is basically one character. So suppose he has taken one character, that is the height. तो कौन सा उसने character लिया? Height. And obviously he has taken two plants. One plant, one parental plant which is tall, another parent plant which is dwarf, right? And he has crossed them to see the result, that what will be the another generation here. So monohybrid matlab, mono means single, hybrid means obviously he is taking one character, one gene and seeing the result. So what is the way and how to find the result, that we will be seeing. So see, first, what is the step that Mendel followed, right? So first is choose the pure parent or homozygous parent. Choose the homozygous parent. So suppose homozygous means, pure parent means homozygous condition should be there. Pure tall, homozygous tall, or other parent should have this character, that is dwarf. So this is homozygous recessive. This is homozygous recessive and this is the homozygous dominant, right? So we have chosen the parent first step. Second step followed by Mendel is फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. सो दिस इज द डिप्लॉयड, है ना, तो दो अलील हैं तो मतलब डिप्लॉयड है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्म द गैमीट, तो गैमीट बनेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम लाइक बोथ द टी विल बी सेपरेटेड एंड बिकम एन, हाफ हो जाएंगे, तो ये टी अलग अलग चलेंगे गैमीट में. सेम हियर गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड, ऑल गैमीट विल बी हैविंग स्मॉल टी. अब फाइनली सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब same flower is, sorry, cross pollination will there because we are taking two plants. तो अब हम कराएंगे cross pollination. So this is the step you have to follow in all the cross. तो थर्ड स्टेप क्या करवाता था मेंडल? क्रॉस पॉलिनेशन. सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, एंड क्रॉस पॉलिनेशन से F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन आएगी इनकी. F1 जनरेशन विल कम. तो लेट्स क्रॉस इट. ये है पनेट स्क्वायर, इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं, राइट? और हमें पता है कि भाई गैमीट्स मेल और फीमेल में एक जैसे ही है. मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक तरफ मेल के गैमीट, एक तरफ फीमेल के गैमीट, तो ऑब्वियसली ऑल आर ड्वार्फ हियर और ऑल गैमीट्स हैविंग द कैपिटल टी. तो सारे जो F1 जनरेशन में कंडीशन आएंगी, ऑल विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन. ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, सारे हेट्रोजाइगस होंगे और सारे टॉल होंगे इन F1 जनरेशन. मेंडल बहुत हैरान. मेंडल ने कहा एक पेरेंट ड्वार्फ है, दूसरा पेरेंट टॉल है, लेकिन फिर भी F1 जनरेशन सारे टॉल क्यों बने, ड्वार्फ क्यों नहीं बना? अब वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया. नाउ व्हाट ही हैज डन, उसने कहा कहीं ना कहीं तो ड्वार्फ छुपा हुआ है. नाउ व्हाट ही विल बी डूइंग, अब उसने फोर्थ स्टेप क्या किया कि F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा. तो F1 जनरेशन का ही उसने मेल पार्ट और F1 जनरेशन का ही फीमेल पार्ट लेगा. सेम प्लांट का मेल फीमेल पार्ट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा. सो दिस इज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के गैमीट बनाएगा. तो गैमीट बनाएगा तो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स बनेंगे. One with capital T, another one small t. This will be the fifth step. अब इनका क्या कराएगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि छुप कहाँ गया है जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है. एंड फाइनली ही विल अरेंज इट इन द पनेट स्क्वायर. तो गैमीट्स को पनेट स्क्वायर में डाल के F2 जनरेशन आने वाली है, राइट? तो ये ऐसे पनेट स्क्वायर बनाओ, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल के गैमीट, एंड इस बार तो दोनों के गैमीट ही सेम बने. एंड फाइनली दिस टी विल क्रॉस विद इट. ये वाला इसके साथ होगा तो ये कंडीशन आएगी.
दिस टी, तो पहले हम डोमिनेंट फिर रेसेसिव लिखेंगे एंड देन दिस विल. सो दैट मीन्स दिस कंडीशन विल बी टॉल. ये हेट्रोजाइगस है पर फिर भी टॉल होगा, ये ऑल्सो टॉल, एंड दिस विल बी ड्वार्फ. सो व्हेन वी सी दी फिनोटाइप रेशियो, अगर हम फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो आउट ऑफ 4 कंडीशन 3 विल बी टॉल एंड 1 विल बी ड्वार्फ. तो आउट ऑफ 4 कंडीशन 3 टॉल होंगी और 1 ड्वार्फ होगा. सो व्हाट विल बी अ रेशियो? 4 4 कैंसिल, सो 3 रेशियो 1. 3 टॉल एंड 1 विल बी ड्वार्फ दिखने में. अगर हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे, सो जीनोटाइप रेशियो में वी आर हैविंग 3. ये कंडीशन और ये. सो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कितनी होगी? इट विल बी 1 कंडीशन आउट ऑफ 4. 1 कंडीशन आउट ऑफ 4. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मतलब होगा टॉल लेकिन हेट्रोजाइगस होगा. सो हेट्रोजाइगस dominant condition will be 2 out of 4 and homozygous recessive condition कितनी होगी? 1 out of 4. so इसका total ratio होगा 1:2:1. that means homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive. so this will be the genotype ratio for the monohybrid cross. So I'm sure that you have followed all the steps that I have told you here. This is all about the introduction of genetics. So हमने सारी terminologies देखी जो कि 11th 12th में भी use होती हैं. We have seen monohybrid cross, and in the next class we will see dihybrid cross, and you have to practice still monohybrid cross, right? And I hope all of you have enjoyed this session. So bacha, thanks a lot and see you all in the next class. So this is the Eklavya batch. I'm sure all of you are aware about this batch. यहाँ पर हमारे सारे सुपर अमेजिंग बच्चे होते हैं. बैच साइज बहुत छोटा होता है, एक एक बच्चे के परफॉर्मेंस ट्रैक किए जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर स्कॉलरशिप लेकर बच्चे आ रहे होते हैं, उनको पूरी स्कॉलरशिप मिलती है. और जिन बच्चों का स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं अगर वो क्रैक कर पाते तो वो पैसा देकर भी इस बैच में नहीं आ सकते, राइट? सो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एकलव्य बैच, जो कि आपको बिल्कुल होना चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्यूचर डॉक्टर, तो यहाँ से हमारे इस बैच से 90% प्लस सिलेक्शन होते हैं हर साल. तो इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, अगर ठान लिया है डॉक्टर बनने की, तो बिल्कुल से यहाँ पर मॉक टेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है. 3 जून एंड 5 जून को एग्जाम होगा इसका 2 PM पर. तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट. एंड यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट हैं जो कि आपको पूरा आइडिया देंगे कि आपको कितना और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. तो एकलव्य बैच क्यों चूज करना है? आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, 11th 12th का अच्छे से रिवीजन होता है, कस्टमाइज प्रिपरेशन बनाई जाती है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपके लिए बनाई जाती है, स्पेसिफिकली पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है. और उसके बाद पूरे डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं विद मास्टर टीचर, विद पर्सनल टीचर, टेस्ट डिस्कशंस होते हैं और टेस्ट सीरीज और उसकी एनालिसिस आपको दी जाती है, राइट? तो मतलब यहाँ पर इस बैच में आने के लिए, और ये बहुत फ्री है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बी द पार्ट ऑफ इट एंड मचाएंगे, राइट? सो सी यू ऑल, बाय बाय बच्चा, हैव अ ग्रेट डे. आई एम श्योर दिस कॉन्सेप्ट हैज fit in your head and see you all in the next class. Have a great day. Thanks a lot.